Good morning to all of you. I am here to share the three secrets of my life. And these three secrets are: first, you have to always speak the truth. You have under any condition you have to speak the truth. The second secret is you have to follow the laws of the life. And the third secret is to always be in a good company. Now, if you follow all these three secrets of this life, you will be an extraordinary person all throughout your life. Your life will be from an ordinary to an extraordinary. Now, let's begin with first. Always be truthful. Now, if you begin your life by saying in the morning that whatever I am going to speak today is going to speak the truth of my life. Whatever I am going to speak, I am going to speak the truth of my life. That's all. In the morning, you just give this affirmation to yourself and start your day. What I have seen in the last 25 years of my counseling sessions that people always speak untruthful things. People, they don't go for, they just say the words and they don't follow it. They just go on, they just do it like this. Casually they do it like this. And they don't follow those words sincerely. So I have seen that if you say the truth of life, whatever you say, you have to speak. Whatever you say, whatever truth you say, you have to speak and you have to do that. And whatever you do, you have to speak that. This is the first principle. This is the first secret. You have to do it. Now, I will go with a short story for myself. I started my career at the age of 21. I started with a very good business, but suddenly after some time it was a little struggle was going on. There was little failure in my life, and it was going on like this. Suddenly I wanted to have some money, so I called one of my friend. So he told me that tomorrow you can come to my office and you can collect the money. I went there, and as I went there, from the morning till the evening, he was just talking like this, doing something here and there. Okay, at the end of the day, I did not got the money. Okay, I went back home. I went back home, and there I got the major realization of my life. The realization of my life was that I am from today onwards not going to speak untruthful things in my life. I promised to myself that from today onwards, I am not going to do this. Whatever be the condition of my life, I am not going to do this. Today, as I go on, I see many people, I experience many people, I went to many places. I have seen people do little mistakes. They go in the morning, they promise their son, their daughters, that in the evening I will bring something to you. They have promised. And at the end of the day, when they come empty-handed. Their son, their daughter, they say, "Oh, father, have you brought these things for me?" They don't. They say, "Oh, I forgot." So what I am trying to say to you, that if you do this, there are things going around in your life. Some say auric position, some says this, some say that. But I say one thing, there is something internal. You have recorded the evidence that you have not done a little thing for your child. You have recorded it. It has been recorded. Now you can't change it. And the nature has also recorded it. Now if you see, if you don't do such simple things for your child, people are speaking lies to their child. लोग अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं. आप बताइए मुझे, वो अपने बच्चों का इच्छा पूरा नहीं कर सकते, वो दुनिया की इच्छा क्या पूरा करेंगे? ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. और मैंने ये 25 ईयर्स, लास्ट 25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने ये जिया है, मैंने ये देखा है. और जब
आपको एक मैं सेकंड एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया कि भाई आप आओ, आपको मैं हेल्प करता हूँ। उसने मुझे 10,000 के सामने मेरे 5 लाख की कार रखने के लिए कहा, गिरवी रखने के लिए कहा। आप सोचिए, मुझे इतना एम्बैरेस्ड हुआ कि मैं शाम को पूरी रात सोया नहीं। और मैंने उस दिन ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, सारी ज़िंदगी मैं लोगों को दूंगा। और मैं उसके बाद से देना शुरू किया। मेरा हाथ ऐसे ही है, चाहे मैं उससे पैसे का हेल्प कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन मैंने उसको जुबान से हेल्प किया है, मैंने उसको अपने हार्ट से हेल्प किया है, मैंने उसको अपनी काउंसलिंग से हेल्प किया है। मैं उसको हर हाल में, वो मेरे हाथ से खाली हाथ नहीं जा सकता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, यू कैन फाइंड दिस थिंग्स। आप किसी से भी पता लगा सकते हो मेरे बारे में कि हाउ दिस पर्सन इज, एंड आई हैव लिव्ड दिस लाइफ फॉर लास्ट 25 years ऑफ माई लाइफ। एंड आई चैलेंज इट, इफ यू डू दिस, योर लाइफ will change from ordinary to extraordinary. You are not going to live an ordinary life all throughout your life. Mark my words. Remember these words again and again. And the simple activity I would like to share with you, I do it daily, and I want people to please do this. The activity is, put your hand on your heart. Just do it. Put your hand on your heart and say, from today onwards, whatever I am going to speak, I am going to do. And whatever I am going to do, I will speak. That's all. Just do it. Just do it. If you can do it 3 times, do it. Do it for at least 6 months. And you see, your life will be magic. The magic will assist you. I am literally using this word. The magic will assist you. Your life will be magic. Wherever you go, जहां भी आप जाएंगे, मैजिक आपके साथ जाएगा। जिससे भी आप मिलेंगे, मैजिक होगा वहां पर। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन मैजिक हो रहा है क्योंकि आपने सिंपल प्रिंसिपल है ट्रूथफुलनेस का, वो आपने फॉलो किया है। मैंने अपने काउंसलिंग सेशन में ये देखा है दोस्तों कि लोग अपने लाइफ पार्टनर्स को चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताइए, वो अपने पार्टनर्स को झूठ बोलते हैं, वो जिंदगी में कितने बड़े एंटरप्राइज को रन करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, मैंने ये पूरी जिंदगी देखा है। फ्रॉम लास्ट 25 years आई हैव सीन दिस, दैट पीपल हैव ऑलवेज डन दिस। ये लोग ऐसे ही करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ सक्सेसफुल। वो मेरे पास आते हैं, कहीं से ढूंढते डालते, लोगों से मिलते हुए मेरे पास आते हैं कि भाई ये आपको कुछ बताएंगे। मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं। मैंने बोला सर, आप अपने बच्चे को धोखा देते हो, आप अपनी वाइफ को धोखा देते हो, आप कैसे बड़ा एंटरप्राइज रन करेंगे? तो बोलते ये क्या आप रिडिकुलस बात करते हो, कुछ भी बात करते हैं आप। मैं बोला ये सच है। आप जब ये सब झूठी बातें करते हैं ना, आपके अंतःकरण में वो रिकॉर्ड हो जाता है, आपके ऑरा में वो रिकॉर्ड हो जाता है। आपके नेचर, ये नेचर जो है ना यूनिवर्सल, जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, इसने रिकॉर्ड कर लिया है कि साहब ये आदमी झूठा है। और आप देख लीजिए, आप कोशिश करिए, आप कहीं भी जाइए, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अगर इन केस आप सक्सेसफुल हो भी गए, आउट ऑफ ए चांस हो भी गए, तो बहुत दिन तक ज़्यादा उधर रह नहीं पाएंगे, बहुत दिन तक ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाएंगे। मैंने ये मेरी ज़िंदगी में लास्ट 25 years प्रैक्टिस की है। ऐसे मेरे पास कई इंस्टेंस हैं, कई उदाहरण हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। आपको एक सेल्स कॉल आता है और आप उससे झूठ बोलते हैं। आप मुंबई में बोलते हैं, गोवा में। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? वो इंसान नहीं है, वो भी कुछ काम कर रहा है। ठीक है, देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, आई विल नॉट गो फॉर दैट, बट I will surely mark these words. Never speak untruthful things in your life. You make your awareness to that level. Aware of yourself, aware of your body, aware of your mind. What you are speaking. Just be conscious about it. Never in your life do that. And
there are many examples. I can cite many examples over here. If you call someone and say I am going to come at 5 o'clock, my dear friends, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आपको वहाँ 5 बजे पहुँचना है. और मान लीजिए मुंबई की ट्रैफिक कंडीशन ऐसी है, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, प्लीज़ कॉल देम एंड से मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूँ. और किसी भी इंसान को 10 मिनट से ज़्यादा वेट मत करवाइए. आपको मालूम नहीं है, आप ये अनजाने में उनका इंसल्ट कर रहे हैं. आप एक इंसान का, एक लिविंग बीइंग का इंसल्ट कर रहे हैं, और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे. आप लिख लीजिए, मैं आपको ये लिख के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप ये लिख लीजिए कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे. यू डू दिस. I have done this from last 25 years of my life, my dear friends, and I have been successful. I have been an ordinary person, but today I am an extraordinary person. Today I run enterprises. Today people come to take my name. They say I will practice all this what you are saying to me. Today most of the divorce cases in my life, 90% of divorce cases I have solved. Just by saying such small things. I'd say them for 21 days. If not for 21 days, for 7 days at least. Just practice saying that from today onwards, whatever I will speak the truth, and whatever I will always be obedient to you. I will always be just be truthful. That's my concept. Just be truthful to your partners, to your family members, to everyone around you, because this is the concept of life. You have to be truthful. You have to be truthful under any condition of life. There is no condition. No. You cannot say anything. Oh, I was because this, because that. No. Nothing is permitted under any condition. And the second secret of my life is you have to follow the principles of life. There are moral laws, there are ethical laws, there are physical laws, there are universal laws, and you have to follow them. There are traffic laws, and you have to follow them. If you want to be on the top of your chart, you have to follow all these rules of your life. And my dear, mark my words, unconditionally. No conditions. ओ ऐसा हो गया इसलिए मैंने ये नहीं किया, ओ ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया. नहीं. आपको ये ऐसा गलती करना ही नहीं है. If you are on the car, follow the traffic rules. If you are doing anything, my dear friends, anything, follow the moral laws, follow the ethical laws. You have to be ethical. आपने जुबान दिया है, आपको करना है. No, nothing like that. So this, and there are universal laws. They are very clear. You all are knowing it, but I am again saying to you all, my dear friends, आप नेचर को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को आप 1 रुपया दीजिए. मैं कहता हूँ कि ये भी एक एक्टिविटी करके देखिए. आप एक छोटा सा एक बैंक बनाइए, छोटा सा बॉक्स बनाइए, पिगी बैंक बनाइए, जो भी बनाइए, आप उसे 1 रुपया दीजिए. आप देखिए आपका कैसा ग्रोथ होता है. आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. आप 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद आप सोचेंगे कैसे मैं ग्रोथ कर रहा हूँ. क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज लाइक दिस. इफ यू गिव 1 rupees, द नेचर हैज टू गिव यू 1000 times more. That means many times more. It is not clear defined, but many times more. But you have to give. If you start practicing giving, my dear friends, if you start practicing giving, you are definitely going to get in your life. That's sure. Write it down. Write it down in your book. That if you are giving, you are going to receive in your life. And there are laws. To every action there is equal and opposite reaction. My dear friends, आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपको वो बुमरैंग होके आने ही वाला है. आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इन लॉज को फॉलो करिए. ये मोरल लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, इनको फॉलो करिए.
मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। मुझे नेचर के बारे में जानने का, लोगों के बारे में जानने का, यूनिवर्स के बारे में जानने का बहुत ही क्यूरियोसिटी है। हुआ यूँ कि मुझे कुछ चीज़ें जानना था, मुझे कुछ प्रोसेस जानना था जीवन के, और मैं बढ़ते चला गया। एक बार हुआ यूँ कि मैं एक ऐसे जंगल एरिया में चला गया जहाँ पर कई तरह के एनिमल्स थे, वाइल्ड एक पॉइजनस स्नेक्स, वाइल्ड एनिमल्स लाइक दिस, बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं उस जगह पे मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा रियलाइजेशन मुझे हुआ है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें मेरे साथ असलियत में हुई है। मेरे आज भी ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी कहता है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये। जब मैं पहले दिन एक छोटे से हट में जाके रुका तो मैंने देखा कि मैं एक सोच के साथ गया था कि मैं खूब डर रहा था, खूब टेंशन ले रहा था, फियर फैक्टर मेरे दिल में बहुत तेज़ी से था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पॉइजनस स्नेक आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। एक तरह का डोमिनेशन था मेरे अंदर, एक तरह का ये था कि बस मैं, कुछ भी होगा, कोई भी आएगा तो मैं देख लूँगा उसको। और ऐसा सिलसिला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक चलता रहा और मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। फिर मैंने एक गांव वालों के पास गया, मैंने उसको कहा कि देखो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे यहाँ से कैसे भी करके मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप यहाँ पर आए हैं, ये जानवर आपको नहीं जानते और आप इन जानवर को नहीं जानते। बोला, अरे मैं इन जानवर को जान के क्या करूँगा? नहीं, मैं आपको एक थियरी बताता हूँ। आप आज से सिर्फ ये सोचिए कि ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे कोलीग्स हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं आपके, उसने एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताया कि ये सब आपके मित्र हैं, यही आप सोचना है आपको। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी, मैं वहाँ पर जब रात भर सोता रहा तो एक ज़िंदगी का एक ऐसा रियलाइजेशन मुझे हुआ कि वो जो पॉइजनस स्नेक्स, वो जो वाइल्ड एनिमल्स वहाँ से गुजर रहे थे, वो मेरे हट की तरफ आए ही नहीं। ये रियलाइजेशन, नेचर का ये रियलाइजेशन मुझे ये बताता है कि हम लोग कॉरपोरेट कल्चर के नाम पे, दुनियादारी के नाम पे, बेमतलब का कंपटीशन के नाम पे डरते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। अरे ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे ये कर देगा, ये मेरे से ये इसको आगे आने मत दो, नहीं तो ये मैं पीछे हो जाऊंगा। नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारे अपने दोस्त हैं। आप उनके साथ जो रवैया रखेंगे, जो सोच आप रखेंगे, वही आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस रियलाइजेशन से मैंने ये सीखा कि लाइफ में आप जो सोचते हैं वही आपके साथ बूमरैंग होता है। आप गलत सोचेंगे, आपके साथ गलत होगा। आप अच्छा सोचेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं लाइफ में, ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं जब मैं अपने आप को बहुत ही डिस्टर्ब महसूस किया मैंने। और जब मैं इस नेचर के पास गया, जब मैं ऐसे जगहों पे गया, तो मैंने सीखा कि कैसे आदमी, कैसे ये सर्कमस्टेंसेस, कैसे हम लोग ये जो सीख रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं, उसको कैसे मुझे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस ऑफ लाइफ। और मुझे बैलेंस थियरी भी आ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कैसे लोगों के साथ रहना है। और थर्ड सीक्रेट मेरी लाइफ का ये रहा है कि ऑलवेज बी इन ए गुड कंपनी। अंडर एनी कंडीशन यू हैव टू बी इन ए गुड कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। आप ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जो पूरे दिन क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेन करते हो, कंडेम करते हो। आप ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे, 101% आपकी लाइफ एक डिजास्टर होगी। विल नॉट हैव अ वंडरफुल लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। रिमेंबर दिस थिंग्स, you will not have a wonderful life. You are not going to have wonderful life under any condition of life.
I have seen in my life that you start complaining, you lose all your things in your life. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको तकलीफें कहां से आ रही हैं, आप सोच ही नहीं सकते. आप आके बोलेंगे अरे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों है. अरे साहब, आप स्ट्रगल करना, आप कंप्लेंट करना छोड़ दीजिए, आप लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, आप कंडेम करना छोड़ दीजिए. आप देखिए, आप लाइफ में ऐसी जगह पे जाएंगे, आपको कहां से वो एनर्जीज आएगी, कैसे एनर्जीज आएगी, आप सोच नहीं सकते. माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा लॉ मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं. कहते हैं कि नेचर अबोर्स द वैक्यूम. नेचर कहते हैं कि खाली जगह अगर आप रखेंगे तो वो भर जाएगी, कहीं ना कहीं से भर जाएगी, कुछ ना उसमें या तो कूड़ा करकट भर जाएगा या तो कोई अच्छी चीज़ भर जाएगी. तो आप अपने दिमाग में कूड़ा करकट भरने से अच्छा है कि अच्छी चीज़ें भरिए. नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ दे आर ऑटोमेटिक. वो आपके पास है, आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है आपके पास. लेकिन अगर आपको रेज करना है अपने स्टैंडर्ड, यू हैव टू रेज योर एनर्जी. You have to raise your energy, my dear friends. You have to raise your standards. Positive thinking, good thinking, right thinking. ये एक ऊपर का वेव है. आपको इस वेव में रहना है, आपको नीचे नहीं रहना है, आपको ऊपर रहना है. और आप जब इस वेव पे ऊपर रहेंगे, आप देखेंगे, इस वाइब्रेशन पे आप रहेंगे, तो आप देखेंगे कि लाइफ आपकी मिरेकल हो जाएगी. आप जहां भी जाएंगे लोगों को मिरेकल बांटेंगे, मैजिक बांटेंगे आप लोगों को. लोग बोलेंगे अरे क्या हो रहा है, ये बहुत मज़ा आ रहा है मुझे मेरी ज़िंदगी में, ये क्या हो रहा है. ऐसे ही ये ज़िंदगी में आप ऐसा वैक्यूम क्रिएट करिए अपने हार्ट में लोगों के लिए कि नेचर आपको वो कुछ ना कुछ देता रहे. आप लोगों के लिए भावना रखिए कि मैं ये काम मैं करके दूंगा, इसको चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके दूंगा. आप अब जस्ट वैक्यूम क्रिएट तो करिए. देखिए नेचर आपको कैसे देता है. नेचर आपको इवेंट्स के थ्रू, सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, लोगों के थ्रू. माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था. जब सवेरे मॉर्निंग में मैं जब अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि लोग शाम तक मेरे कैबिन में कौन कौन आने वाला है. ऐसे ऐसे लोग मेरे उसमें आते हैं कि मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है. ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम किसी फंडामेंटल लॉज के थ्रू चल रहे हैं. हम ऐसे लॉज को फॉलो कर रहे हैं. और आप उस लेवल पे आ जाइए, क्विकली आ जाइए. आप ये छोटी छोटी चीज़ें करिए. आप देखिए, आप दिन में 3 बार बोल के तो देखिए, आज से मैं जो बोलूँगा वही करूँगा, और जो मैं करूँगा वही मैं बोलूँगा. माय डियर फ्रेंड्स, आप ये करके देखिए, आपकी लाइफ में मैजिक होने लग जाएगा. आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगी. लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, मेरे पास वो प्रॉब्लम्स है. मैं उनको यही कहता हूँ, द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ आर लाइक टाइड इन द ओशन. दे विल कम, दे विल गो अवे, दे विल कम, दे विल गो अवे. आपको उसके साथ जाना नहीं है, आपको खड़े रह के सिर्फ देखना है. आप जस्ट उसको वॉच करिए. मेरा ये मानना है दोस्तों कि हम सब जो भी लिविंग, जो भी लोग हैं, हम सब एक ऐसी एनर्जी के साथ जी रहे हैं. हमारे पास ऑलरेडी नेचुरली ऐसी एनर्जी है कि हमें अपने आप कैसे ज़िंदगी में ऊपर जाना है, कैसे खुश रहना है, ये सब हमको अच्छी तरह से मालूम है. लेकिन हम जब दुनिया में आते हैं तो हम इन सारी चीज़ों के में पॉलिस्टेट हो जाते हैं, नाना प्रकार की चीज़ों में फंस जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, किसी के ओपिनियन से, किसी के इससे. और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं. अगर आप एक्चुअली में आप अपने आप को स्कैन करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं हर किसी के लिए कह रहा हूँ, आप अपने आप को स्कैन करिए. एट द एंड ऑफ द डे आप ये पाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप पावरफुल हैं,
आप एबेंडेंट हैं, आप में वो ताकत है कि आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब मैं ये सोचता हूँ, जब मैं ये सब बोल रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे क्या कुछ भी बात करता है ये, क्या पाएगा। माई डियर फ्रेंड्स, आई स्टार्टेड विथ ज़ीरो एंड टुडे आई एम running 3 enterprises. I started with zero. There was struggles in my life. So much struggle कि एक समय ऐसा आया था कि मैं अपने घर से अपने कहीं पर जाना होता था तो मैं पैदल जाया करता था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आज मुझे वो मैजिक पता चल गया है कि कैसे आपके पास पैसा आएगा। मैं आपको एक छोटा सा पैसे के बारे में भी छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। पैसा भी हमारे जैसा, हम लोगों के जैसा एक दोस्त है हमारा। वो आप उसको कुछ भी खराब मत बोलिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोग कहीं पर खड़े रहते हैं, बोलते हैं यार पैसे की वजह से ऐसा हो गया। लोग बोलते हैं अरे यार पैसा बहुत ये चीज़ है, हम नहीं कमा सकते। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, तो भी मैं अंदर दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ पैसे से, जो भी, क्योंकि मैं गलती से भी ये बात नहीं बोल सकता हूँ पैसे के बारे में। आज पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से या चाहे वो भी कोई भी सिचुएशन की वजह से हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहता है। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, और पैसे को जितना आप रेस्पेक्ट करेंगे उतना ही वो ग्रो करेगा। पैसा आपसे अलग नहीं है, पैसा बहुत सेंसिटिव है। मार्क माई वर्ड्स, पैसा बहुत सेंसिटिव है। और ये पैसा, इसको आप जरा भी कोई भी गलत बात आप बोलेंगे कहीं पर भी, मैं यहाँ सेमिनार ले रहा हूँ या मैं सेशन ले रहा हूँ या मैं किसी को 1-to-1 काउंसलिंग कर रहा हूँ, अगर मैंने पैसे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा, शाम तक वो पैसा मुझसे रूठ के कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छा सोचना है, लोगों के बारे में भी अच्छा सोचना है। कोई आदमी आपके पास आ गया, कोई हेल्प करने के लिए आ गया, तो आप सोचते अरे इसको कैसे मैं हेल्प करूं, मेरे पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, मैं कैसे हेल्प करूं। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू कांट हेल्प विथ योर मनी, एट इज हेल्प विथ योर माउथ। इफ यू कांट हेल्प विथ योर माउथ, माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट हेल्प देम विथ योर हार्ट। जस्ट प्रे फॉर देम। आज हम कहीं पर नहीं जा सकते, हम यहाँ घर पे बैठे अपने घर पे बैठे हुए हम लोगों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। We can at least pray for them. Just start giving this, my dear friends. Your life will be magic. From an ordinary, you will be an extraordinary. And today, as usual, मैं अपने कई सेमिनार्स में और कई जगह में ये पोएम मेरे हार्ट के बहुत करीब रहा है, और मैं इस पोएम को वापस से बोलना चाहता हूँ with all your permissions. What can I give you? What can I give you, poor as I am? What can I give you, poor as I am? If I were a shepherd, I will do my lamb. If I were a shepherd, I will bring you a lamb. If I were a wise man, I will do my part. Yet, what can I give you? You my heart. That's all, my dear friends. मैं सब लोगों को यही प्रार्थना करता हूँ, तहे दिल से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जीवन में ट्रूथफुल रहें, नेचर के लॉज को फॉलो करें और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। थैंक्स।